Edition in which we tell you everything that's happening as far as the annular solar eclipse that is underway and is visible in many parts of northern and western India. And temples across the country will remain closed for pilgrim worship today due to the solar eclipse. The temple doors will reopen after the eclipse period is over, but devotees will not be allowed in. Temples across UP are closed too. At Ayodhya and Prayagraj, including Radheshyam Giri temple, will remain closed for devotees. And the auspicious Ganga Snan is not taking place in Varanasi in view of the solar eclipse. ये सीधी तस्वीरें अयोध्या प्रयागराज से ये तस्वीरें आप दुबई से देख रहे हैं, जहां पर दुबई में इस तरह का नज़ारा इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल पतली सी रिंग एकदम जिसे कहते हैं वो आप देख रहे हैं। Crescent is almost just like a crescent moon, but that's actually the sun. और ये भी दिखाई पड़ रहा है रुकमा इसमें कि अब सूर्य का वहां पर बहुत छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है। Right. है ना, दुबई में बिल्कुल छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है। Joining us as we were speaking with earlier, Mr. Ajay Lele. And Mr. Lele, we are getting this visual from Dubai, clearly in Saudi Arabia, whether it's Jeddah or whether it is Dubai. It is clearly visible. In fact, it's almost completely covered, the sun there. And it does not appear that the ring of fire is going to be visible because we can just see it on one side. What happens is that now if you see the entire path of this, the entire activity started, one can say, at Congo in South Africa. Yes. Congo now it is coming to Saudi Arabia, then it is shifting to India, and finally it will end in the middle of Pacific Ocean. Particularly on the land region, I think the last visibility will be over parts of Taiwan and China. Right. So when looking at this entire path of narrow band of around say 20 kilometers this side and that side, it depends on where your cameras are positioned, where you are actually seeing it. So basically the annular part of it will be visible only at a perfect place where the exact alignment will be there. Other aspect, particularly in today's time, is the weather part also, particularly in countries like places like India, where monsoons are active in most parts of the country. The weather is not playing accurately from the point of view of viewing the systems. So your visibility will depend on these 2 to 3 factors. Right. Right. जी बिल्कुल। तो जैसा आप बता रहे थे कि ये जो वलय है, जो रिंग ऑफ फायर है, ये बस कुछ छोटी सी जो पतली सी पट्टी होती है वहीं पर ये दिखाई पड़ेगा, जहाँ बिल्कुल एकदम सीधा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों बिल्कुल एक लाइन में जहाँ पर होंगे वहीं पर ये वलय दिखाई पड़ेगा। बाकी जगहों पर ये वलय नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि थोड़ा सा कटा हुआ और जो आंशिक सूर्य ग्रहण जिसे हम कहते हैं उस तरह का ये दिखाई पड़ेगा, जिसमें सूर्य का छोटा सा हिस्सा दिखाई पड़ेगा कटा हुआ और कुछ हिस्सा दिखाई पड़ेगा। हमारे साथ हरिकेश बहादुर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं वाराणसी से। हरिकेश, वाराणसी का भी बिल्कुल धार्मिक और पौराणिक महत्व है और हम लगातार कुरुक्षेत्र से, प्रयागराज से लगातार हम अपने संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन जगहों का भी बिल्कुल धार्मिक पौराणिक महत्व है। वाराणसी भी एक ऐसी ही जगह है। वहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, क्या वहां पर लोगों को स्नान वगैरह की कोई अनुमति दी गई है या कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर लोगों को खास तौर पर निर्देश दिया गया है कि वो किसी भी तरह से इकट्ठे ना हो? लालचंद, मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं 80 घाट पे हूं और यहाँ के जितने भी घाट हैं, दशाश्वमेध घाट से लेके इधर और दशाश्वमेध घाट के उस तरफ राजघाट तक, हर तरफ जो है पुलिस की व्यवस्था है और प्रशासन ने किसी को भी स्नान की अनुमति नहीं दी है। तो आप देख सकते हैं पीछे मेरे कि पूरा घाट खाली दिखाई दे रहा है और चूंकि चंद्रग्रहण में ऐसी मान्यता है, आपने जैसा कहा कि धार्मिक नगरी है, यहाँ पे ज्योतिषाचार्य बहुत हैं और जो ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, इससे ज्योतिष से जो मान्यताएं हैं उसके आधार पे भी लोग यहाँ पे स्नान करने गंगा जी में आते हैं। इन्हें
पाप नाशिनी मोक्ष वाहिनी कहा जाता है। काशी में स्नान का अपना महत्व भी है, जैसा आप बता रहे थे कि प्रयागराज में और कुरुक्षेत्र में, उसी तरह लेकिन यहाँ पे चूंकि कोरोना की वजह से यहाँ पे प्रशासन ने किसी को भी अनुमति नहीं दी है और पूरा पुलिस महकमा जो अपनी पूरी जो ताकत लगा के पूरे घाटों पे ही लगा रखा है कि लोग यहाँ पे ना आए स्नान करने के लिए। लेकिन जो हम लोगों जैसे लोग जो यहाँ पे हैं और पुलिस वालों से भी बात हुई, जो जिन लोगों का घाटों के किनारे घर है, उन लोगों का भी यही कहना है कि अगर प्रशासन ने मना किया है और सूर्य ग्रहण लग रहा है तो हम लोग स्वेच्छा से भी नहीं जाएंगे गंगा जी में स्नान करने के लिए, जबकि ये धार्मिक नगरी है, लोगों की मान्यता है, उसके बावजूद भी सूर्य ग्रहण में लोग अपने अपने घरों में हैं। और चूंकि आज योग दिवस भी था तो सुबह सुबह लोग यहाँ पे वाराणसी में अपने छतों पर, अपने घरों में, क्योंकि वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री जी हैं और लोग उनके आह्वान को, हर आह्वान को मानते हैं, तो जिस तरह से सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सार्वजनिक स्थलों पर योग नहीं करना है, तो लोगों ने अपने घरों में ही, अपने छतों पर ही योग किया। ये जो मैं जहां अभी खड़ा हूं, ये 80 घाट है, प्रधानमंत्री जी ने यहीं से फावड़ा चला के स्वच्छता के अपने अभियान की शुरुआत की थी और आज ये इतना अच्छा बन गया है, इतना मनोरम है ये 80 घाट की यहाँ पे सुबह बनारस रोज जो है यहाँ पे सुबह की लोग जो है संगीत का, नृत्य का प्रोग्राम होता है। उसके अलावा लोग यहाँ पे योग कम से कम 300-400 लोग योग करते हैं और सुबह बनारस की शुरुआत करते हैं। तो लालचंद मैं आपको बताऊं कि ये सुबह बनारस का जो ये 80 घाट है ये भी आज खाली है। जी लालचंद। हरिकेश, हम ये जानना चाहते थे कि क्या बनारस में कोई खास इंतजाम किया गया है लोगों के लिए ये सूर्य ग्रहण देखने का, और दूसरी बात ये बताइएगा कि बनारस में समय क्या है, किस वक्त वहां पर दिखाई पड़ेगा सूर्य ग्रहण और कब तक दिखाई पड़ेगा? यहाँ पे भी जो यहाँ के समाचार पत्रों में और जो प्रशासन की तरफ से भी बताया गया है वो समय जो है 12 बज के कुछ मिनट का ही है। और बाकी यहाँ पे चूंकि मैं लालचंद आपको बताऊं कि जब से मैं यहाँ घाट पे आया हूँ, सुबह तो बारिश हुई थी लेकिन ये बादल बादल जैसा आसमान में है और एक बार जब से मैं खड़ा हूँ, एक बार 2 मिनट के लिए ही केवल धूप दिखाई दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि बादल वाले इस आसमान में कुछ ऐसा यहाँ पे वाराणसी के लोग देख पाएंगे। और यहाँ पे कोई इस तरह का एक BHU ही था जहाँ पे टेलीस्कोप से लोगों को दिखाया जाता था, क्योंकि लॉकडाउन की इस कोविड-19 की वजह से BHU भी बंद चल रहा है। तो वहाँ के छात्र भी जो है, चूंकि रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, मैक्सिमम छात्र हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल खाली करा दिया गया था, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई इंतजाम नहीं है जिसमें कि लोग जाके देख सकें, चूंकि लोगों को निकलने की भी मनाही है। तो BHU में ही था जो कि बंद है, इसलिए वहां पे भी लोग नहीं देख पा रहे हैं। और घाट पे जो नहान का महात्म्य था, जो मान था, जो आप कह रहे थे कि धार्मिक नगरी है, क्योंकि लोगों को मना किया गया है, प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं है और पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पे लगा हुआ है काफी मुस्तैदी से कि लोग न निकलें और गंगा में स्नान कर सकें। लालचंद जी बिल्कुल। तो ये देखिए इस वक्त दृश्य बादलों के बीच से सूर्य ग्रहण का नज़ारा, बादलों के बीच से ये सूर्य ग्रहण का नज़ारा आप देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। और ये जो नज़ारा, ये प्रयागराज का नज़ारा है, ये प्रयागराज से आप देख रहे हैं बादलों के बीच से सूर्य ग्रहण का नज़ारा। कुछ ऐसा ही नज़ारा हरिकेश भी बता रहे हैं कि शायद वाराणसी में भी इसी तरह का कुछ दिखाई पड़ेगा। And the sky is appearing absolutely dark. It must be a great treat for people there, you know. और ये भी तब जबकि अभी सूर्य ग्रहण में छोटा सा हिस्सा ही सूर्य का ढका है। Exactly. Harikesh, we're getting visuals from Prayagraj right now, and well, while in Varanasi it's clearly bright daylight, over there we can see dark skies. रुकमा, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे भी बादल हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जरा दिखाएं इधर का जो है, चूंकि आप देख सकते हैं ये गंगा के जस्ट किनारे मैं हूँ और आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पे आसमान है। चूंकि बादल है यहाँ पर, एक बार केवल अभी जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, करीब 2-3 घंटे से हूँ, केवल एक बार जो है यहाँ पे धूप के दर्शन हुए हैं और जो है लगातार बादल बना हुआ है। तो अब देखते हैं कि उस समय तक किस तरह का माहौल होगा, किस तरह का होगा, बादल ही रहेंगे या धूप जैसा कुछ होगा। क्योंकि आप बता रहे हैं कि प्रयागराज में अंधेरा जैसा हो गया है, तो यहाँ भी उतना अंधेरा जैसा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो बादल होने के कारण जिस तरह का होता है उजाला, जिस तरह का प्रकाश होता है बादल होने की वजह से, उस तरह का ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रुकमा जी चलिए हरिकेश, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया
जानकारी के लिए, और हम आगे भी आपसे कोशिश करेंगे जानकारी लेने की, लेकिन फ़िलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश। और इस वक्त हमारे साथ अजय लेले जी, जो कि हमारे विशेषज्ञ हैं, वो मौजूद हैं। अजय लेले जी, जैसा कि हम अभी देख रहे थे, अपने रिपोर्टर से भी बात कर रहे थे, अपने संवाददाताओं से, कि बादल वाले हिस्से में बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा शायद वाराणसी जैसी जगहों पर। तो क्या किस तरह से जो वैसे वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो किस तरह से सूर्य ग्रहण देख सकते हैं? टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, डीडी न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं, किस तरह से उनके लिए ये देखने की व्यवस्था हो सकती है? अगर आपको सूर्य ग्रहण देखना है जहाँ पे बादल है, तो मेरे विचार अच्छी चीज होगी कि आप इसको डीडी न्यूज पे देखें, क्योंकि काफी अच्छी कवरेज दे रहे हैं। वेबसाइट भी ऐसे हैं, नासा का वेबसाइट है जो बहुत ही अच्छा कवरेज दे रहा है पूरे सूर्य ग्रहण का। जी। Well, we are getting you visuals and we are speaking with Mr. Ajay घर से Lele. बाहर तो निकलना नहीं है, ब्रेक हुआ इसलिए मैं थोड़ा There seems to be a problem there. We'll try and get in touch वहीं with पर him. बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त आप लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से जो सूर्य ग्रहण का नज़ारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देश विदेश का नज़ारा दिखा रहे हैं, देश के कई हिस्सों का नज़ारा दिखा रहे हैं, विदेशों में भी जहां को अभी तक ख़ास तौर पर जो खाड़ी देश हैं वहां से हमें दृश्य मिल रहे हैं, वो हम आपको लगातार आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और And everywhere it appears, Lalchandra, that the impact of COVID-19, you know, because of the जी। measures that have to be taken, because as a precaution against the spread of COVID-19, has hampered the viewing of this phenomenon today. But we are giving you DD News, DD India is giving you these visuals regularly, and update on the eclipse as it progresses. It's going to cover a distance of almost 6 hours nearly as it जो कि अपने comes आप में to. काफ़ी लंबा वक्त कहा जा सकता है सूर्य ग्रहण के लिए। And इतने as our लंबे वक्त। expert was saying, it began in the Congo and it will progress till and finish and finally end in the Pacific Islands. Right now we have with us Mr. Ajay Lele, who was telling us about the viewing of the eclipse in some areas where it is partial. Mr. Lele, when we talk about the impact of, we've always heard about how in the sun's rays become more dangerous, how it's very important not to look at the sun directly or even at its reflection anymore. Your analysis of this situation? It's perfectly all right to see this as with an indirect method. Pinhole camera is one of the techniques which has been used for many years to see it. Like earlier it was mentioned, can we see it as an image in water? Yes, there is a possibility that you can see it, but that's not a 100% foolproof method. The best method is to use your filtered glasses, the glasses which are used by the welders, and nowadays you get specifically prepared filters also to view these things. Because to view this particular celestial phenomena by naked eye is totally harmful for eyes, and nobody should even attempt it. If all those things are not available, the best option is to view it on television. जी। Right, sir. एक सवाल और मैं पूछना चाहता था, खास तौर पर आम लोगों के लिए। हो सकता है कि जहां पर आंशिक तौर पर बादल है वहां अगर सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा, जहां कम बादल होंगे, तो कुछ लोग हो सकता है उसको नंगी आंखों से देखने की कोशिश करें। आपकी क्या सलाह है ऐसे में? क्या ये देखना खतरनाक होगा? ये खतरनाक होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आंख आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और उसके साथ ऐसी चीजें करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आपको सूर्य ग्रहण देखना है तब आप उसको अच्छी तरह से टेलीविजन के पर्दे पे भी देख सकते हैं, और अगर आपके पास फिल्टर्स हैं तो भी आप उसको देखें, अन्यथा मेरे विचार से इसको देखना बहुत ही हानिकारक होगा आंखों के लिए। Sir, and is there a difference in the impact of the sun's rays? As far as the sun's rays are concerned, is there a difference between the rays and their impact of an annular eclipse and a partial eclipse?
You see, what happens is that as far as annular eclipse is concerned, the only ring is visible. As far as partial eclipse is concerned, the total part of the entire region is half visible, or it depends at which area the individual is present. But seeing both the eclipse by naked eyes is totally harmful. Even annular eclipse also should not be viewed, because the partial portion of the sun which is visible over there, what we call ring of fire, that also will be determinant to your health of the eyes. जी Hence, बिल्कुल। should और be avoided. बिल्कुल इस वक्त आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स जो हेनले की टेलीस्कोप जो है उसका नज़ारा आप देख रहे हैं किस तरह से वो दूरबीन से बिल्कुल ये नज़ारा लिया गया है। और इसी पर हम बात करना चाहेंगे अजय लेले जी से भी। अजय लेले जी, ये जो दूरबीन से ली गई तस्वीर हम दिखा रहे हैं, तो अगर किसी के पास दूरबीन हो और वो अगर इस सूर्य ग्रहण को देख रहा हो, तो क्या उसे भी कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है या उसका क्या तरीका है? आजकल के जमाने में दूरबीन के लिए भी काफी अच्छी मात्रा में फिल्टर्स अवेलेबल हैं। मेरे विचार से आपको पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी, और जो फिल्टर्स होंगे जो दूरबीन के लिए भी उपलब्ध होंगे उसको यूज करके ही देखने की जरूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको दूरबीन की क्वालिटी की पता नहीं होता, और कौन से क्वालिटी का है, किसी लोकल से है क्या, कैसे बनाया है। सो मेरे विचार से इसमें आपको कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे ये जो हेनले टेलीस्कोप है, हेनले दूरबीन है, इसकी क्या खासियत है और ये कितना उन्नत टेलीस्कोप है जिससे कि ये तस्वीरें ली गई हैं? आजकल अगर आप टेलीस्कोप्स का जिक्र करें तो टेलीस्कोप्स बहुत सारे उन्नत टेलीस्कोप्स हैं। आपके जो एंटायर मीडियम है आज सूर्य ग्रहण देखने का, वो काफी बड़ी मात्रा में मीडियम है, जहां पे आप कई सारे ऑब्जर्वेशंस कई सारे प्लेटफॉर्म से लेते हैं। तो टेलीस्कोप एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको मैग्निफिकेशन दिखता है, लेकिन आप सैटेलाइट के जरिए भी देख सकते हैं। आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां से भी लोग देख रहे होंगे। एक जमात जिसको हम बोलते हैं वो होती है जिसको इक्लिप्स ट्रैकर्स बोलते हैं। ये लोगों को बहुत सारा उत्साह होता है, और जहां जहां इक्लिप्स होता है वहां वहां वो जाके उसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली ये पीपल विद साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होते हैं, और वो काफी अच्छी मात्रा में उसके फोटोग्राफ्स लेते हैं और काफी अच्छी तरह से उसको ट्रेस भी करते हैं। सो वो जो डेटा अवेलेबल होगा वो डेटा भी आपको काफी अच्छी तस्वीरें दिखाएगा। टेलीस्कोप्स वाली तस्वीरें भी अच्छी होगी, बाकी जरिए लिए हुए इस तस्वीरें अच्छी होगी, क्योंकि आपका ऑप्टिक्स जो है वो काफी अच्छी तरह से प्रगत हो चुका है। तो मेरे विचार से आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं जिसके जरिए आप देख सकते हैं। नेकेड आई से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। इसके खास तौर पर अगर थोड़ा वैज्ञानिक पहलू पर बात करें, जब कभी सूर्य ग्रहण लगता है तो हम जानते हैं कि जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं वो मोटे तौर पर 3 तरह की किरणें होती हैं। एक जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, दूसरी लाइट्स की किरणें होती हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, और तीसरी इंफ्रारेड रेज होती हैं, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें और प्रकाश की किरणें। जब कभी सूर्य ग्रहण इस तरह का लगता है तो इन 3 किरणों पर, ये जो 3 तरह के रेज होते हैं, कौन सी किरण पर किस तरह का असर पड़ता है? क्या किसी में कोई बढ़ोतरी या कोई कमी आती है? क्या ऐसा होता है कि इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट जो है उसमें कोई बढ़ोतरी आ जाती है? इस तरह की कोई बात होती है? नहीं, बेसिकली यू सी, आप जब ग्रहण कहते हैं तब ये एक गेम ऑफ शैडोज है। तो एक शैडो आती है और उसके जरिए आपके पास जो एक लाइट आ रहा है वो लाइट को वो रोक देती है। तो जब लाइट को रोक देती है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो लाइट के ऊपर इम्पैक्ट करती है। लाइट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होते हैं, वह वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन जब वो रोक हटती है, इसीलिए हम ये कहते हैं जब ग्रहण होता है तब अगर आप थोड़ा बारीकाई से देखें तो उसका एक जोन होता है। वो जोन जब ग्रहण की शुरुआत होती है तब उसको हम फर्स्ट कॉन्टैक्ट बोलते हैं। दैट मीन्स पहली बार वो एक कॉन्टैक्ट हो गया है कि ग्रहण की शुरुआत हो गई है। सेकंड कॉन्टैक्ट जब होता है तब वो उसके जोन के बिल्कुल अंदर आ चुका होता है, और आपको जब टोटल सूर्य ग्रहण होता है तो टोटलिटी दिखती है। उसके बाद जब ग्रहण खत्म होने की तरफ जाता है तब आपका थर्ड कॉन्टैक्ट होता है, फोर्थ कॉन्टैक्ट होता है। तो आपका जो लाइट है वो डिफरेंशिएट होता है इन सब कॉन्टैक्ट्स में। कई बार आपका 50% अवेलेबल है, कई बार 70% है, कई बार 30% ही है। आपका ये एन्युलर इक्लिप्स है, टोटल सोलर इक्लिप्स है या पार्शियल इक्लिप्स है, इसके जरिए हमें पता चलता है कि कितनी
लाइट की मात्रा में, परसेंटेज की मात्रा में लाइट उपलब्ध है। इसके कई और भी ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान ऑब्जर्वेशन होता है टेम्परेचर्स को जानना। यूजुअली ये कहा जाता है कि जब टोटलिटी होती है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गिरावट आती है। ऑब्वियसली अगर आपके यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं आएंगी तो आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा और पूरा अंधेरा भी छा जाता है। पर्टिकुलरली बर्ड्स के लिए काफी ऐसा दृश्य होता है कि उनका जो दिनचर्या रहती है वो सोलार से निगलेक्ट रहती है, लेकिन सडनली जब अंधेरा हो जाता है तो आपके बर्ड्स को या पंछियों को भी लगता है कि रात हो गई है और वो भी अपने घर के तरफ वापस जा सकते हैं। तो ये कई सारी चीजें होती है, वो 5-10 मिनट के टाइम में होती है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती है। काफी और भी ऑब्जर्वेशंस लिए गए हैं। 1911 में एक ऑब्जर्वेशन लिया गया था। पर्टिकुलरली क्या होता है कि जब आपका सूर्य रहता है और चंद्र रहता है, जब आपका इक्लिप्स वाला सिचुएशन नहीं होता, तब आप स्टार्स को जिक्र करना या स्टार्स का स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि वहां पे स्टार्स भी होते हैं और बाकी सूर्य की या चंद्र की रोशनी होती है, लेकिन इक्लिप्स के कारण, पर्टिकुलरली टोटल सोलर इक्लिप्स या एनुलर इक्लिप्स में वो रोशनी नहीं है। तो अगर स्टार्स का भी अगर आपको कुछ एनालिसिस करना है, कुछ अध्ययन करना है, तो ये एक अच्छा समय माना जाता है। तो 1911 में आइंस्टाइन का गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था, रिलेटिविटी का जो सिद्धांत था, उसके ऊपर भी काफी संशोधन किया गया था। ग्रेविटी के ऊपर काफी सारे ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग दिस पीरियड भी लेते हैं। अभी तक किसी को कोई खास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है ये सब ऑब्जर्वेशंस का, लेकिन लोगों की खोज जारी है। तो ये जो हम ग्रहण कहते हैं वो बहुत अच्छा समय है साइंस को आगे करने के लिए और काफी अच्छी मात्रा में ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। Well, Mr. Lelip, stay with us. We are also joined by Professor Pandey, and coming to you, Professor Pandey, right now. Well, it's said that often the moon is too high or low in the sky to block out the sun. In that sense, is that why scientists, astronomers are calling this eclipse a very rare eclipse, because of the alignment of the moon, the position of the moon today? प्रोफेसर पांडे, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे अभी बात हो रही थी अजय लेले जी से कि जब कभी इस तरह का सूर्य ग्रहण होता है तो तात्कालिक तौर पर तापमान में 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलती है। हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि क्या इसका लंबे समय के लिए भी क्या मौसम पर कोई असर होता है? क्या मौसम में कोई और इस तरह का बदलाव या इसकी वजह से किसी तरह की कोई उस पर असर होता है मौसम पर? Right. फिलहाल उनसे संपर्क, हमारी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल। उनसे We can go back to Mr. Lele. जी बिल्कुल बिल्कुल। think, तो अजय लेले जी से मैं यही सवाल करता हूं क्योंकि उन्होंने बताया था कि 3-4 डिग्री तापमान तत्काल नीचे आता है क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं आती हैं। अजय लेले जी, आपसे यही इसी को आगे बढ़ाते हुए समझना चाहते हैं कि क्या तात्कालिक तौर पर ही 3-4 डिग्री सेल्सियस तापमान की गिरावट आती है या मौसम पर कुछ और भी असर इसका पड़ता है? नहीं, मेरे विचार से बहुत ज्यादा असर नहीं होता। ये एक टेम्पररी फिनोमेना है और ये 3-4 डिग्री सेल्सियस भी जब कम होता है जब आप एक टोटलिटी का समय अचीव करते हैं। सो बेसिकली अगर आपका टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जैसे जैसे आपका ग्रहण लगता जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे कम हो जाता है। मे बी आधे डिग्री 1 डिग्री ऐसे कम हो जाता है, और जब टोटलिटी का समय होता है तब 3 या 4 डिग्री से कम हो जाता है। लेकिन अगर आप पूरा ये घटना देखिए, अगर हम भारत की ही बात करें तो पूरे 6 घंटे में ये सब कुछ खत्म होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मौसम के ऊपर इसका कुछ नहीं होगा। ये एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा जब खाली टेम्परेचर में गिरावट आएगी। Right, sir. And when we talk about, how eclipses have always been seen to have a lot of implications in folklore, in legend, in the rituals and beliefs of the people, not just in India but even across the world. When did that change? I think over a period of time the science has evolved, and particularly for the eclipse phenomenon like this, the way we are giving the publicity now,
Hello? explaining to the people various activities which are happening. I think there will be more amount of a scientific नहीं मैं तो सुन नहीं पा रहा कोई बात नहीं then you will come to know more about it. Right. ठीक ओके थैंक यू सो मच Right. We also have with us Professor Pandey. We're trying to get in touch with him, but right now talking to Mr. Lele, who tells us about how, with time, views about the solar eclipses have changed. Well, we believe, Mr. Lele, that the alignment of the moon, the position of the moon, is also very important. How does it figure in today's solar eclipse? If we talk about scientific terms, how scientists have view it. As I was explaining earlier, the entire alignment has to be perfect to see to it that the entire shadow is available for the sun to hide. Now this shadow becomes available based on your distances. Like I was making a mention earlier, that the distance of this Earth to the moon, the distance between the Earth and moon is almost 4 lakh kilometers. Right. The distance between the Earth and sun is 400 times of that. And if you really look at the diameter of the moon and diameter of the sun, it is almost 400 times more than that. So with these two figures of the distance 400 times and the diameter also 400 times larger, they are somewhere matching, and an apparent image happens, and you are able to see either a totality, that means a total solar eclipse, or a annular solar eclipse. You see annular solar eclipse because the distance of the moon at that point in time is farthest away from the Earth. That's the reason the totality is not there. Because to have a totality, you have entire hiding of the sun's rays. But that doesn't happen. You get a ring of fire where the sun's rays are still available. So when all these sorts of alignments come together in a particular fashion, then only you will have either annular eclipse or a total solar eclipse. And the parts where the path is hardly going over there, you will have a partial eclipse, or in some parts of the world, there will be no eclipse also. This is the way all these activities are happening. Essentially, since we are discussing these things, there will be one more interesting aspect which needs to be brought up, is that the eclipse are happening because there is a moon. Moon, we consider that as a satellite, but there are artificial satellites also. If artificial satellites are there, then why we are not having these sites of eclipses happening? It is again depending on the size of a satellite. Your size of satellites are so small that they are not able to make certain amount of a mathematical alignment to ensure that there will be an eclipse. That is the reason that is only happening. If you look at other planets also, there are various other planets which have got their own moons also. So they also will have their eclipses also. Okay. जी अजय लेले जी, ये भी एक चीज़ ज़रूर समझना चाहेंगे कि ये 25 साल बाद इस तरह का सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ा है, तो क्या ये जो समय है 25 साल लगा, तो क्या ये इसके बारे में कुछ है कि फिर अगली बार इस तरह का कब दिखाई पड़ेगा? नहीं, क्या होता है कि हर समय का देयर इज नो स्पेसिफिक इंटरवल्स. एज आई वाज मेकिंग अ मेंशन कि आपका अलाइनमेंट उस तरफ से होना चाहिए. सो अलाइनमेंट होने के लिए 3-4 चीजें बहुत जरूरी है. सबसे जरूरी है आप कौन से प्लेन में हैं. जैसा मैं पहले कह रहा था कि आपको एवरी न्यू मून, दैट मीन्स अदरवाइज क्या होता है, आपके हर महीने में एक न्यू मून आता है, तो अमावस जिसको हम कहते हैं. तो हर अमावस को ग्रहण क्यों नहीं होता? इसका बेसिक रीजन ये है कि आपका अर्थ और मून का जो ऑर्बिटल पोजीशन है उसमें 5 डिग्रीज का अंतर है. तो जब यह अंतर और ये दूरी मिट जाती है और आपका अलाइनमेंट सही होता है, तभी ये होता है. तो अगर 25 साल में ये हो सकता है, आने वाले दिनों में 2 साल में भी हो सकता है, उसके बाद और 15 साल में भी हो सकता है. सो ये एक इरेगुलर इंटरवल है, इसमें कोई स्पेसिफिक इंटरवल नहीं है. आने वाला जो दूसरा ग्रहण होगा इस साल का, वो दिसंबर के महीने में होगा. वो टोटल सोलर इक्लिप्स होगा, लेकिन वो भारत से नहीं दिखेगा. उसके बाद जो एक अच्छा इक्लिप्स आने वाला है वो 2022 में आएगा. सो ये इरेगुलर इंटरवल है. जब तक आपकी अलाइनमेंट फिक्स नहीं होती जिससे ग्रहण हो जाएगा, तब तक ये नहीं होता. Right, sir. And in a short while from now, the eclipse will reach its peak in most parts of India, where the ring of fire will be visible. So we are approaching that hour. What does it mean
for a scientist, for an astronomer, for someone who studies the skies and celestial beings, what does it mean to study such an event? What are the aspects that are most interesting at this point? You see, as far as astronomers are concerned, one must understand that these events are of a regular, not of a regular interval. So Right. in a lifetime of an astronomer, the active life of an astronomer, if I say, if an astronomer is working, say, for 20 to 30 years, there could be an opportunity that he or she could witness 3 to 4 eclipses, or he or she could witness hardly one eclipse. Like it was made a mention that after 25 years, this sort of eclipse has happened. Right. Other thing is that position of astronomer. If an astronomer is positioned in India, then it's not necessary that the astronomer will be able to see all the eclipses which are happening in other parts of the world. So basically, space and time is very important. So as an astronomer, you get very rare opportunities to take observations on your own like this, because the celestial phenomena is not happening every day, and it's not happening in every part of the world simultaneously. So definitely the astronomers look forward for all those things. They prepared themselves very well, because we all know when all the forthcoming solar or lunar activities which are going to take place are going to be visible. So you know the dates, you know the places also. So people travel from one place to other place also, just to take certain amount of observations. Like I was making mention earlier, nowadays there is a study which is going on where you are trying to take certain amount of gravitational observations also. People are trying to look at certain other aspects also, where you are trying to identify certain amount of theories. Like the theory of Einstein was proven right by a few scientists a couple of years back, based on certain amount of observations about the distances between the stars which were taken place. So all those sorts of activities which keep on happening. Now, over a period of time, it's not only the science which was developed, it's the scientific instrumentation also has made a lot amount of developments. Right from your optics to your other sensors, there is a lot amount of a development has taken place. So now people are picking up different types of observations also, and based on those observations, with a further analysis, they may get certain amount of a good scientific explanations why all those things are happening. बिल्कुल। हमारे साथ आप बने रहिएगा अजय लेले जी। हमारे साथ हमारे संवाददाता तपस भी जुड़े हुए हैं। तपस, बिल्कुल तपस, इस वक्त राजधानी दिल्ली का क्या नज़ारा है? क्योंकि बादल थे, बारिश हो रही थी, तो क्या लोग सूर्य ग्रहण देख पा रहे हैं राजधानी दिल्ली में? और क्योंकि इसलिए भी क्योंकि ये वो वक्त है जब राजधानी दिल्ली में धीरे धीरे जो सूर्य ग्रहण है वो बढ़ता जा रहा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा लालचंद जी। सबसे पहले तो ये बात थी कि ये इस वक्त मैं हूँ नेहरू प्लानिटेरियम में, और इस वक्त अगर ये कोरोना संकट अगर नहीं होता तो इस वक्त बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, खासतौर से जो सोलर इक्लिप्स है उसको देखने के लिए। उसका देखने का एक अलग ही मजा है, लेकिन कोरोना के चलते इस जगह को पब्लिक के लिए बंद करके रखा गया है, लेकिन मीडिया कर्मियों को आने की यहाँ पे इजाजत है। और जैसे हमने पहले भी बताया कि 10:01 पे दिल्ली में जो एक्लिप्स का टाइमिंग था वो शुरू हुआ था, और एक करीब 80% जो एक्लिप्स है वो हो चुका है। मैं आपको एक विजुअल दिखा हूं, आप देख पाएंगे थोड़ा सा। अगर यहां पे पीछे की तरफ एक स्क्रीन लगाई गई है, इसको टेलीस्कोप के साथ कनेक्ट किया गया है। इससे आप देख सकते हैं इस टेलीस्कोप के मदद से कि करीब 80% जो है वो करीब जो सोलर इक्लिप्स है वो हो चुका है। और दिल्ली में करीब 12:01 पे कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो फुल सोलर इक्लिप्स आएगा, करीब 94% जो है वो आएगा। और ये अपने आप में एक बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिलेगा। अभी हम जब से देख पा रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं ये सोलर फिल्टर्स जो यूज कर रहे हैं हम, ये सोलर फिल्टर्स हमें ये जो सोलर इक्लिप्स है इसको देखने में बहुत मदद कर रहा है। और ये जो इक्लिप्स है, हम बताना चाहेंगे कि ये खासतौर से राजस्थान और जो उत्तराखंड की कुछ जगह हैं उन जगहों पे खासतौर से ये जो इक्लिप्स है ये बहुत ज्यादा क्लियर दिखेगा। और एक और जो खास बात है कि इस इक्लिप्स जो है ये धीरे धीरे असम के डिब्रूगढ़ से होके हुए चाइना में चला जाएगा। तो करीब
के कुछ मिनट में ये एक्लिप्स जो है भारत से निकल जाएगा, लेकिन तब तापस तक इस वक्त जो लोग इस हैं वक्त जरा हम वो अपने इसका दर्शकों पूरा को ये मजा जानकारी लेंगे। देना चाहते हैं कि इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं ये श्री गंगानगर राजस्थान से देख रहे हैं आप, जहां पर अब सूरज का थोड़ा सा हिस्सा, बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, शायद 10% से भी कम हिस्सा बचा होगा। ये अब आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें राजस्थान के श्री गंगानगर से। देखिए And जी, ये पटोला जगह है राजस्थान के श्री गंगानगर में, वहां से आप ये नज़ारा सीधा as the प्रसारण देख sun is obscured, अच्छा the रुकमा, मैं sky. एक बात ये भी कह रहा था कि इस तरह का नज़ारा प्राय चंद्रमा का दिखाई पड़ता है, जब इस तरह का Right. वो बिल्कुल The shape is that of a आर्क की तरह crescent दिखाई पड़ता moon, but right now there's just that spark like a star that is visible. है। और ये दृश्य कुरुक्षेत्र का है, जहाँ देखिए कि बिल्कुल एक अलग सा ही दृश्य दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर एक तारे की तरह दिखाई पड़ रहा है सूर्य फिलहाल वहाँ पर। And the sky has become dark. It must जी। be a wonderful experience, a bit scary as well, Lal Chandra, when the बिल्कुल। skies become dark during the day. और ये तस्वीर, क्योंकि हम देश विदेश से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दुबई की तस्वीरें हैं। दुबई में देखिए फिलहाल जो सूर्य ग्रहण है उसका क्या नज़ारा है दुबई में। The shape of a crescent moon. जी बिल्कुल, And प्राय very इस तरह का जो दृश्य है वो चंद्रमा में ही दिखाई पड़ता है, सूर्य में नहीं दिखाई पड़ता। और ये देखिए प्रयागराज के लोगों को बादलों की वजह से सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि वहाँ बादल इतने घने हैं कि वहाँ पर सूर्य ग्रहण का नज़ारा नहीं दिख पा रहा है लोगों को। तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि बादलों की वजह से नहीं। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता बता रहे थे पहले कि It's वो the day बादलों of- की वजह से वहाँ पर लोग नहीं देख पा रहे हैं, और ये नज़ारा हमने देखा। और यही कुछ ऐसा ही हरिकेश भी हमें वाराणसी से बता रहे थे। And as we were telling you, we are approaching the peak of the eclipse. जी, और इस वक्त कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता उर्मिलेश भी हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, ये बड़ा ही विचित्र सा नज़ारा कुरुक्षेत्र से दिखाई पड़ा था, जो कि बिल्कुल तारे की तरह, स्टार की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आप वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ जो ये नज़ारा दिख रहा है उसके बारे में क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ? जी लालचंद, बिल्कुल इस समय हम लोग जो है कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर है इसके किनारे पे खड़े हैं। एक तरफ आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ पर खगोल वैज्ञानिक जो तारामंडल के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे टेलीस्कोप लगा रखा है। उस टेलीस्कोप के जरिए जो है लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे जो है सूर्य जो है वलयाकार में जो अपना ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, वो वलयाकार में अपना होता जा रहा है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो इस ग्रहण को लेकर के काफी खुश है। उसको देख करके जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक जो है तमाम लोगों को समझा रहे हैं यहाँ पर जो है ये कुछ नहीं है, ये एक अपने आप में एक जो खगोलीय घटना है उस तरीके की घटना है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। साथ ही उनका ये कहना है कि जो तमाम खगोलीय वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों के लिए और जो और भी जो वैज्ञानिक हैं उन उर्मिलेश, हम आगे आपसे जरूर चर्चा करेंगे। इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये देखिए, ये श्री गंगानगर राजस्थान के से ये आप तस्वीर, पटोला जगह है, वहाँ से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। बहुत ही छोटा सा हिस्सा सूरज का बच रहा है इस वक्त, बहुत ही छोटा सा हिस्सा, और हो सकता है अगले कुछ ही देर में ये जो है ये हिस्सा भी ना दिखाई पड़े वहाँ पर, है ना रुकमा, जो कि बिल्कुल एक अपने आप में एक बहुत ही विशेष बात होगी वहाँ के लोगों के लिए। And DD News is bringing you these visuals from the ground in Sri Ganganagar in Rajasthan. That's a visual of the moon eclipsing और the ये sun. अब किसी भी वक्त पूरी तरह से पूरा सूर्य जो है वो गायब हो सकता है ना, जिस तरह It's the day बिल्कुल of the सूरज का annular. आकार घटता चला जा रहा है। It's the day of the annular eclipse from Patola in Sri Ganganagar in Rajasthan. Live visual of the moon eclipsing the sun. A very rare phenomena, as our experts have been telling us, and as the sun is eclipsed, the skies have become dark. It's almost as dark as night, and बिल्कुल। very soon we'll just see the ring of fire, as which is because the moon, as experts were telling us, is of very small size. It is furthest from the earth, in fact, and that is why it will not be able to completely block out
the sun. रुकमा, बचपन में कई बार जब इस तरह की घटनाएं होती थी और पूरा सूर्य ग्रहण लग जाता था तो हम डर जाते थे बिल्कुल। Yes. हालांकि ये डरने की बात नहीं है क्योंकि ये It's एक a खगोलीय totally घटना है। natural phenomenon. It's a totally natural phenomenon, as our experts have been telling us, in Kurukshetra in Haryana and in Patola and Sri Ganganagar in Rajasthan. इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप दो जगह से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। एक जगह पर आप जो देख रहे हैं जहां पर सूरज बहुत ही छोटा सा दिखाई पड़ रहा है, वो श्री गंगानगर राजस्थान से आप देख रहे हैं, और जहां पर तारे के आकार का दिखाई पड़ रहा है ये कुरुक्षेत्र का नजारा है। And it's become dark as night जी during बिल्कुल, the और daytime. जिस घड़ी का इंतजार है एक तरह से कहें कि पूरा सूर्य ग्रहण वो वहां पर दिखाई पड़े, तो ये अब बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है और किसी भी वक्त हो सकता है कि वहां पर पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा अब दिखाई पड़ सकता है। हमारे साथ अजय लेले जी विशेषज्ञ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे बात करते हैं। अजय जी, ये जो हम श्री गंगानगर से तस्वीरें देख रहे थे राजस्थान से, जो जितना सा आकार बच गया है, इसमें एक मन में इच्छा, एक कौतूहल होती है कि कितनी देर में लगता है कि पूरा सूर्य ग्रहण वहां पर दिखाई पड़ जाएगा? मेरे विचार से जितना आकार बच गया है 3-4 मिनट का समय होगा, उसके एग्जैक्ट टाइमिंग्स अवेलेबल हैं, लेकिन मेरे विचार से और 3-4 मिनट तो लगेंगे। 3-4 मिनट में वो बिल्कुल पूर्ण सूर्य ग्रहण वहां दिखाई पड़ सकता है। हम अभी जो जिक्र कर रहे थे कि इसके और क्या परिणाम हो सकते हैं, सबसे इमीडिएट परिणाम होता है कि एनिमल्स बिहेवियर जो होता है वो थोड़ा चेंज होते हुए दिख जाता है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि सडनली अंधेरा कैसे हो गया है। तो थोड़ा सा कई लोग होते हैं जो शास्त्रज्ञ होते हैं जो एनिमल्स बिहेवियर के ऊपर भी कई सारे मात्रा में रिसर्च करते हैं इस दौरान, बिकॉज ये देखा जा गया है पर्टिकुलरली एनिमल्स बिहेवियर के ऊपर काफी भारी मात्रा में इम्पैक्ट ऐसे खगोलीय घटनाओं का। Right, and clearly it's because of the unnatural phenomena of a night time falling over the falling over daylight, because from the visuals we are getting, it's as dark as night in Sri Ganganagar in Rajasthan, in Patola from where we're getting this visual, and in Kurukshetra as well. Definitely, because animals also have got certain amount of a cycle of their entire day. And all of a sudden, when they find that such type of a darkness is there, particularly it has been observed that the birds start returning back to their nests because they feel that the times have already elapsed for the daylight and they have to get back. So these types of things do happen, but particularly on the human beings, since we have got good amount of a scientific explanation for all these phenomena, people actually take the pleasure of watching all those celestial events. अजय लेले जी, श्री गंगानगर से तो हम देख रहे हैं बहुत ही थोड़ा सा बचा है और किसी भी वक्त अब ये पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ सकता है, लेकिन ये जो बिल्कुल रिंग ऑफ फायर दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर श्री गंगानगर में, लेकिन हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो कुरुक्षेत्र से बिल्कुल तारे जैसा नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, ये किस वजह से? मुझे यहाँ से वो दिख नहीं रहा है तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा, लेकिन ब्रॉडली मैं ये कहूंगा कि क्या होता है, अभी आप जो देख रहे हैं वो खाली एक सेलेस्टियल फिनोमिना नहीं है। आपके वेदर कंडीशंस कैसे हैं, वहां पे क्लाउडिंग कितना है, कई जगह पे तो आज हम ग्रहण देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि काफी सारा मानसून क्लाउडिंग है या प्री मानसून क्लाउडिंग है नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो कुरुक्षेत्र के वहां भी एक्चुअल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है ये तो मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन नॉर्मली इम्पैक्ट होता है आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट चल रहा है और साथ में आपका वेदर कैसे बिहेव कर रहा है, बिकॉज आपका विजिबिलिटी उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जी, Right, and as we see the skies have become dark, Mr. Lele, but the timing we were given when the eclipse would reach its peak was around 12 o'clock. So can we expect that this kind of a situation, this kind of night time during the day, it will continue for some time now? Definitely. Right now I think we are at 11:50 or so, so almost for 10 minutes it will be there. And the type of the totality, or what we can say that the entire annual eclipse will exist, is supposed to be around 5 to 7 minutes, depending on the location where you are looking at.
So I think the total type of a darkness what we are witnessing now maybe maybe changing the shades based on the locations again. I think it will remain totally for around 15 to 20 minutes. और ये देखिए, आप अपना टेलीविज़न स्क्रीन पर ये दृश्य देख रहे हैं जब आप बिल्कुल सूर्य जो है वो एकदम अब रिंग ऑफ फायर जिसे हम कहते हैं वही नज़ारा बनता हुआ. Right, and the sun, it is in a short while from now, in perhaps just a few minutes, it is going to be only visible as a ring, and as the moon obscures ये देखिए its center. ये जिस रिंग बनने की तरफ बिल्कुल धीरे धीरे रिंग जो है वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है. A truly magnificent phenomenon being witnessed in Rajasthan, in Haryana and in Uttarakhand. But as our scientists have been telling us, it depends on the weather conditions, on how overcast the sky it is to actually be able to witness और it. ये देखिए लगभग ये रिंग पूरा हो गया है. इस वक्त जो हम देख रहे हैं ये रिंग लगभग पूरा हो चुका है, जहां पर आपको बिल्कुल एक वलय के तौर पर ये दिखाई पड़ रहा है. देखिए ये रिंग पूरा हो चुका है श्री गंगानगर राजस्थान में, और उसके बाद फिर दूसरी तरफ से ये जो छाया है वो निकलती चली जाएगी, और फिर ये इस वक्त रिंग ऑफ फायर आप देख रहे हैं जिसे वलय कहते हैं, वलयाकार सूर्य ग्रहण. ये इस वक्त श्री गंगानगर राजस्थान के पटोला से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं. रिंग ऑफ फायर बन चुका है. The ring of fire from Sri Ganganagar Patola in Sri Ganganagar in Rajasthan becomes visible in the skies that have become dark, and as the sun is obscured by the moon. The ring of fire, the annular solar eclipse. India witnesses the annular solar eclipse. जी, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई, और अब जिस तरफ से ये रिंग बना था, जिस तरफ से ये वलय बना था, उसी तरफ से अब दूसरी तरफ से वो बढ़ता चला जाएगा. और वो जो वलय बनने की जो घटना होती है वो बहुत ही थोड़े देर के लिए होती है. उसके बाद फिर वो बिल्कुल उस तरफ से सूर्य का आकार बढ़ना शुरू हो जाएगा दूसरी तरफ से. As the moon proceeds on its journey, and the sun is able to move away, as it moves away from the sun, as its shadow moves away from the sun. जी बिल्कुल. और ये देखिए अब वो स्थिति आ गई है, यानी जो वलय दिखाई पड़ा था, जो रिंग दिखाई पड़ा था, वो अब दूसरी तरफ से रिंग कट गई है और सूरज धीरे धीरे दूसरी तरफ में बाहर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है. Visuals we are getting you of the ring of fire as it is being seen, as it is happening right now from Patola in Sri Ganganagar in Rajasthan. तो कुछ देर के लिए वो नज़ारा दिखा था. अजय लेले जी, ये बताइए कि ये जो रिंग है इसकी भी जो मोटाई है ये भी अलग अलग जगह पर अलग होती है क्या? क्योंकि यहाँ पर श्री गंगानगर से जो हमने देखा बड़ा पतला सा रिंग दिखाई पड़ा, बहुत ही पतला सा वलय दिखाई पड़ा. क्या होता है, जो आपका कवरेज एरिया है वो कंटिन्यूअसली सेम रहता है हर जगह पे, लेकिन आपका जो विजिबिलिटी वहां का है उसके ऊपर भी होता है. कई बार आपको लगता है कि रिंग बड़ा दिख रहा है, कई बार आपको लगता है छोटा दिख रहा है. बेसिकली ये एक फिक्स फिनोमेना रहता है, बिकॉज अगर आप डायमीटर्स की बात करें तो उस समय जो चंद्रमा का डायमीटर है और चंद्रमा का जो पूरा हिस्सा है जो सूर्य को ढक रहा है वो डिस्टेंस तो सेम ही रहता है. तो इसलिए रिंग्स थोड़ी यहाँ वहां दिख जाती है. कई बार क्या होता है कि थोड़े से बादल होते हैं एक जगह पे तो आपको पूरा रिंग नहीं दिखाई देता. सो उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को खुद को थोड़ा लकी कहना चाहिए, क्योंकि आने वाले कई बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आने वाले कुछ ही वर्षों में ये होने वाला है, क्योंकि मून है वो अर्थ से और दूर दूर जाते जा रहा है. तो आने वाले मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब आपको ग्रहण दिखेगा ही नहीं. तो आई थिंक वी आर born in a right time where at least we are able to enjoy all these celestial moments. आप बड़ी बात कह रहे हैं कि काफ़ी कई लाखों साल के बाद ऐसा हो सकता है कि इस तरह का ग्रहण का नज़ारा दिखे ही नहीं.
बिल्कुल, क्योंकि मून ज्यादा से ज्यादा दूर जाते रहेगा, तो शायद टोटल सोलर इक्लिप्स नहीं होगा, ओनली पार्शियल सोलर इक्लिप्स या अन्य कोई हाइब्रिड इक्लिप्स वगैरह दिखाया जा सकता है। Right, and when we talk today, we are seeing this visual because of the alignment. The sun, the moon, and the earth are in a line. And well, normally, could you explain to us what is it? What is it that happens? अजय जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं? हाँ, मुझे क्वेश्चन कट हो रहा है। Right. जी। Well, we are witnessing this phenomenon today because of the alignment of the sun, the moon, and the earth. That's what we understand. How is this different from normal times when you are saying that the moon now is moving further and further away from the earth, when we and there may come a time when we may not be able to view eclipses at all. Eclipses may just stop occurring. You see, all those things, what I was making a mention that moon is moving away, it will take millions of years to happen. But I thought it's important just to make a mention that all these alignments depend on your exact positioning, or what are your orbits of revolution, because right now the orbits between the earth and the moon, there is a difference of 5 degrees. So that difference will keep on increasing over billions or millions of years. And then a time will come when the difference will be so huge that you will not be having certain types of eclipses also. Particularly to my mind, to have a solar eclipse after billions of years, there could be a possibility that a solar eclipse, a full eclipse may not happen, the total eclipse. Maybe a partial eclipse could be visible. We are seeing in various other, yes? जी, अजय जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आज की जो ये घटना है सूर्य ग्रहण की, खगोल शास्त्र को, एस्ट्रोनॉमी को पढ़ने वाले, रिसर्च करने वाले, जो इस एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, और वो आज की घटना से क्या क्या अध्ययन कर सकते हैं, क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं? मेरे विचार से जो अध्ययन करते हैं वो किसी एक इंडिविजुअल घटना के ऊपर अपना अध्ययन सीमित नहीं रखते, वो लॉन्ग टर्म असेसमेंट करते हैं। सो जो ग्रहण का अध्ययन करते हैं उनके लिए ये एक पर्टिकुलर टेस्ट केस है। वो कई सारे ऐसे टेस्ट केसेस का अध्ययन इकट्ठा करेंगे और फिर नतीजे पे पहुंच जाएंगे। आज की घटना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप कई सारे ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस बाकी पहले लिए हुए ऑब्जर्वेशंस, आने वाले दिनों में आप जो ऑब्जर्वेशंस लेंगे उनकी साठगांठ करके, उसके ऊपर एनालिसिस करके, उसमें कोई पैटर्न डेवलप हो रहा है क्या, ग्रेविटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, टेम्परेचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, एनिमल्स बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये कई सारे जो आप ऑब्जर्वेशंस करेंगे उसके ऊपर फिर आगे जाने वाले दिनों में रिसर्च होगा। और अगर इसको भारत के लिहाज से देखें, क्योंकि भारत के कई हिस्सों में ये बिल्कुल इस बार का ये सूर्य ग्रहण दिखा है, तो भारत के हिसाब से अगर यहाँ के वैज्ञानिकों के अध्ययन की बात करें तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन कहा जाएगा, क्योंकि भारत में ये दिखा है इस तरह से। बिल्कुल, भारत के इसलिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे साइंटिस्ट भारत में ही रह के उसका अध्ययन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके पास इतने प्रावधान नहीं होंगे कि आप से साउथ अफ्रीका में जाके वहां उसका अध्ययन करें या कहीं और जाके करें। पर्टिकुलरली आपके जो एस्ट्रोफिजिक्स के स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं, वो स्टूडेंट्स तो हर कंट्री में जाके उसका अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन उनको ये एक मौका मिलता है कि अपनी ही लैबोरेटरी से, अगर आप भारत में भी देखेंगे तो कई सारी प्रयोगशालाएं हैं। जैसे आपने बैंगलोर से ज्वाइन किया था, वहां पे एक प्रयोगशाला है, दिल्ली में नेहरू प्लानिटेरियम है, पूना में एक आयुगा करके संस्था है जिसमें काफी अच्छी मात्रा में अध्ययन होता है ये सब चीजों का। तो ये सब साइंटिफिक कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने ही देश में आप जाके इसके बारे में एक तो देख सकते हैं खुद के आपको, दूसरी चीज आप उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं। तो मेरे विचार से साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि एक तो इसका ड्यूरेशन भी अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि आप खाली आधे घंटे के दायरे में ही आपको ऑब्जर्वेशंस लेना है, इसका ड्यूरेशन भी अच्छा है। ये एक अच्छा दिन है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए कि वो काफी बड़ी मात्रा में ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं। और राजस्थान और आजू बाजू वाले अगर आप इलाके देखें
तो वहां पे कई बार क्या होता है कि ग्रहण ऐसी जगह पे होता है जहां रीचेबल भी नहीं है, लेकिन ये सब सिटीज है, डेवलप्ड एरियाज हैं जहाँ पे आप ट्रेन, एयरक्राफ्ट किसी भी माध्यम से जा सकते हैं। तो ये भी चीजें होती है, कई बार ग्रहण आपका दिख जाता है खाली से अरबी समुद्र में या बे ऑफ बंगाल में या पैसिफिक ओशन में, तो वहां जाके आपको ऑब्जर्वेशन लेना इतना आसान नहीं रहता। तो आसानी भी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए काफी है, क्योंकि ये ग्रहण ऐसी एरिया से जा रहा है जो आपको एक्सेसिबल है। बिल्कुल। So annular eclipse of the sun is underway, and as scientists and astronomers had predicted, in Rajasthan and Haryana it is most visible. जी बिल्कुल। और ये देखिए, ये जो सूर्य और चंद्रमा है उसकी स्थिति किस तरह से है, and how the entire phenomenon in scientific terms, in terms of in graphical terms, how it is being जी बिल्कुल happening. और ये इसमें शायद ये भी समझाने की कोशिश हो रही है कि वो जो रिंग बनता है, जो आर्क बनता है, वो किस तरह से बनता है, ये भी समझाने की ये कोशिश थी। हमारे साथ अजय लेले जी लगातार जुड़े हुए हैं। Mr. Lele, you were telling us about, you know, the aspects that are studied, the importance of such an event for the study of astronomy, for students of astronomy, even for school students as such. But however, can we clearly accept, you know, that there is no impact in terms of the weather, there is no precursor to such a phenomenon, because most of such phenomenon are very natural? See, what is more important to understand is that every phenomena which we are witnessing, which is an astronomical phenomena, will not give you brilliant sorts of observations or some sort of a path predicting research. Yes. There are phenomena which are happening over a period of time. We are able to predict them well in advance based on our scientific observations and scientific assessments. I think what is important is to understand and appreciate is that we are able to identify that these types of activities are going to happen. So right, sir, right now we are getting कुरुक्षेत्र में देखिए किस तरह का बिल्कुल वहाँ पर रिंग ऑफ फायर, यानी कैसा वलय दिखाई पड़ रहा है कुरुक्षेत्र में। बिल्कुल it's looking like a ring, in fact, जी actually. बिल्कुल ये एकदम जो श्री गंगानगर से जो वलय बना था वो बहुत ही पतला सा दिखाई पड़ा था, लेकिन यहाँ पर बड़ा मोटा सा ये वलय दिखाई पड़ रहा था, रिंग दिखाई पड़ रहा था। Already, however, the moon seems to be moving away, जी because that ring somehow seems to be cut in half now already, and this is a visual from Kurukshetra that we are bringing you. इस वक्त उर्मिलेश हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त नजारा दिखा उर्मिलेश कुरुक्षेत्र से, लोगों में रोमांच भर गया होगा जिस तरह का ये नजारा हमें दिखाई पड़ा। एकदम बिल्कुल जो वलय है, जो रिंग है, वो काफी मोटा सा रिंग दिखाई पड़ा यहाँ पर। वहां लोग काफी रोमांचित हुए होंगे इसको देखकर। तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो ये वलयाकार है वो दिख रहा है सूर्य के चारों तरफ, जो ग्रहण लगा वलयाकार आकार में। और यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर लोग जो है काफी उत्सुक हैं, काफी कौतूहल लोगों में है, काफी जो है लोग प्रसन्न हैं इस नजारे को देखते हुए। लोग जो है यहाँ पर जो खगोल वैज्ञानिकों ने जो है तारामंडल की तरफ से जो यहाँ पर टेलीस्कोप लगा रखा है, लगातार लोग जो है उसकी तरफ से लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं उनके बीच में जब हमने बात की तो उन्होंने, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार ये सूर्य ग्रहण देखा इस तरीके से अपने आप में। साथ में ही जो खगोल वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि अपने आप में ये एक अद्भुत घटना है खगोल की। और जो तमाम जो ये घटना हो रही है वो जो खगोल से जो लोग जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक अद्भुत नजारा है। और रिसर्च के लिए सबसे बड़े उनके जो है ये रिसर्च जो खासकर अगर बात करें कि जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं इस खगोल के उसमें, उनके लिए काफी अहम हो जाता है लालचंद जी। बिल्कुल। और ये नजारा, कुरुक्षेत्र का नजारा बिल्कुल अपने आप में बहुत ही रोमांचक है। पहले तो वहां पर तारे जैसा दिखाई पड़ रहा था वहां की मौसम की स्थिति की वजह से, और उसके बाद ये वलय वहां पर सबसे ज्यादा वहां पर बोल्ड, यानी कि ज्यादा जो है मोटा सा वलय वहां पर दिखाई पड़ा। उर्मिलेश, वहां मौजूद कुछ वैज्ञानिक भी होंगे, उनकी तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया मिली है? ये जो वलय वहां पर बना, ये जो वलय दिखाई पड़ा, इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया मिली है?
जी लालचंद, जो यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों का कहना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, जिस तरीके से आपको हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये जो नजारा दिखा रहे हैं, यहाँ पर एकदम अंधेरा जैसी स्थिति हो गई है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि पूरे शाम हो गई हो। इस तरीके से यहाँ पर जो है, जो ये ब्रह्म सरोवर है, इसके चारों तरफ जो नजारा है वो बहुत खूबसूरत इस समय है। और जो यहाँ पर वैज्ञानिक है उनका कहना है कि ये जो एक खगोलीय घटना है, ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। और खासकर जब ये सूर्य ग्रहण होता है, इसके अलावा हम तो इसमें जो है तमाम चीजों को जानने की उत्सुकता हमें रहती है, जो खगोल से जुड़े लोग हैं। लेकिन जो और भी लोग हैं, जो तमाम जो लोग हैं, सामान्य आदमी है, उसके लिए भी काफी ये जो है उत्सुकता रहती है कि किस तरीके से ये घटना होती है, क्या कुछ इसमें होता है। तो जो यहाँ पर वैज्ञानिक है, वो तमाम जो लोग जो इस बारे में जानना चाहते हैं, जो है इस घटना के बारे में जो है बता रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि ये एक खगोलीय घटना है, इस तरीके से अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, तमाम जो चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे काफी पूजा अर्चना और यज्ञ हो रहा है। लिहाजा जो है दोनों का जो यहाँ पर संगम है लालचंद जी, वो काफी देखने लायक है। बने रहिए हमारे साथ, और अजय लेले जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अजय लेले जी, श्री गंगानगर राजस्थान से जो वलय दिखा वो बहुत पतला सा दिखा, और ये कुरुक्षेत्र से जो वलय दिखा ये बहुत ही बोल्ड, बहुत ही थोड़ा मोटा सा दिखाई पड़ा। इसकी क्या वजह रही? मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे एक्चुअली कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा। तो मेरे पास कोई इमेज भी नहीं है ये आइडेंटिफाई करने के लिए। ब्रॉड जैसा मैं कह रहा था कि वहाँ जो वेदर कंडीशंस होगी, शायद वहाँ पे बादल दिख रहे होंगे, या आपका कैमरे का एंगल भी हो सकता है। बट ब्रॉडली मेरे विचार से जो वलय दिखता है वो हर जगह पे लगभग सेम ही एरिया का, सेम ही साइज का दिखना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये देखिए, आपने श्री गंगानगर से रिंग देखा, उसके बाद कुरुक्षेत्र से रिंग देखा, और ये देहरादून में रिंग पूरा हो गया है, लगभग पूरा हो गया है। Right. We are getting you visuals directly from the ground of the eclipse as it is occurring. This is a visual from Dehradun, Uttarakhand. As we were telling you, Uttarakhand, Haryana and Rajasthan, three states where the eclipse will be most visible as a ring of fire, as the annulus will be most visible, where people will be able to treat themselves to the sight of an annular solar eclipse, the first this year. बिल्कुल। और ये देखिए अपने आप में बहुत ही रोमांचक नज़ारा, जिसका लुत्फ लोगों ने उठाया गंगानगर, श्री गंगानगर में, कुरुक्षेत्र में और देहरादून। तो ये फिलहाल जो है आप नज़ारा देख रहे हैं। अजय लेले जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देहरादून से ये नज़ारा हमने देखा, जहां वहां पर भी रिंग बन गया। 3 जगहों से तो हमें सीधी तस्वीरें मिल गई जहां पर कि ये रिंग दिखाई पड़ा। ये ख़ास तौर पर बहुत ही रोमांचक दृश्य होता है, और बहुत कुछ इसमें स्टडी यानी अध्ययन के लिए भी। फ़िलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमें और हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि ये घटना किस तरह की होती है और इसके क्या महत्व होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उर्मिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। उर्मिलेश, जिस समय आपसे बात हो रही थी तो उस समय वो रिंग बना था, और उसके बाद कुरुक्षेत्र में वो रिंग खत्म होते हुए सूरज का आकार बढ़ रहा था। इस वक्त क्या स्थिति है? क्या वहां पूरी तरह से सूर्य ग्रहण अभी भी है या खत्म हो चुका है? जी लालचंद, अगर हम लोग कुरुक्षेत्र की बात करें तो अभी भी सूर्य ग्रहण जो है पूरी तरीके से बना हुआ है। धीरे धीरे जो बलायकार की बात हो रही थी, वो बलायकार लगातार वो जो है जो लोग हैं उनको यहाँ पर देखने के मिल रहा है। हमने यहाँ पे जो खगोल वैज्ञानिक है उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि अपना आप में ये बड़ी घटना है, कई वर्षों बाद ऐसी घटनाएं होती हैं। और यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उन लोगों को वो जो है बता रहे हैं कि आप इस घटना को देखिए, इस घटना का आप इंजॉय करिए, इसको आप जो है जो एक इंजॉय की तरह के होता है उसी तरीके से आप इसको ले। आप जो है तमाम जो ये जो घटना है खगोल की जो घटना है, इसको जो है खगोल वैज्ञानिक कहना कि हमें एक नई चीज मिलेगी रिसर्च करने के लिए। और इसके अलावा भी जो और लोग आएंगे, जो नए लोग जो यहाँ पे छोटे बच्चे या कुछ, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत कम लोगों को यहाँ पे प्रवेश की अनुमति दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे जो है पालन किया जा रहा है। तो उसको तमाम चीजों को देखते हुए जो यहाँ पे खगोल वैज्ञानिक है वो लोगों के बीच में जो इस बात को अपनी मजबूती के साथ रख रहे हैं कि देखिए किस तरीके से हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। आप खाइए, इंजॉय करिए और देखिए कि खगोल में जो घटनाएं होती है वो किस तरीके से बदलती रहती है। लालचंद जी
जी उर्मिलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा और हम लगातार अपने संवाददाताओं से तो बात करते ही रहेंगे, विशेषज्ञों से भी बात करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और फिर इस पूरी घटना की जो लाइव तस्वीरें हैं, लाइव रिपोर्ट्स हैं और जो चर्चा है, इसको हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए DG न्यूज़। Stay tuned. We'll be right back. योग